نوح کی کشتی 6 مہینے تک پانی میں تیرتی رہی۔ اس فصیل سے پہلے ایک خندق تھی جسے پانی کے ساتھ بھر دیا گیا تھا۔ کسی مشرک یا کافر کے لیے اللہ کے نبی مغفرت کی دعا نہیں مانگتے۔ آج کا عنوان ہے ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد تھے۔ بی بی سارہ ابراہیم کی پہلی بیوی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ بی بی سارہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت ابراہیم کی عمر 35 سال تھی اور ان کی شادی ملک شام میں ہوئی۔ ابراہیم اور سارہ نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا۔ جناب ابراہیم سفر کرتے کرتے مصر پہنچے۔ فرعون مصر ایک ظالم اور سخت بادشاہ تھا۔ فرعون کے کارندے اپنی سلطنت میں رہنے والے یا سفر کرنے والے لوگوں میں سے خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے جایا کرتے اور بادشاہ کو پیش کر دیتے تھے۔ فرعون اس کے بدلے میں انہیں انعام سے نوازا کرتا تھا۔ فرعون کے فوجی بی بی سارہ کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ فرعون برے ارادے کے ساتھ بی بی سارہ کی طرف بڑھا تو اس کا بازو شل ہو گیا۔ فرعون کو احساس ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے۔ بی بی سارہ سے معافی مانگی۔ بی بی سارہ نے فرعون کو معاف کر دیا تو اس کا بازو ٹھیک ہو گیا۔ جناب ابراہیم کو بھی وہیں بلایا گیا۔ فرعون نے اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لیے اپنی سب سے ایماندار خادمہ ہاجرہ کو سیدہ سارہ کی خدمت کے لیے انہیں دے دیا۔ بی بی ہاجرہ قبطی یعنی مصر کی رہنے والی ہیں۔ تورات کی روایات کے مطابق بی بی ہاجرہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی ہیں۔ سیدہ سارہ نے ہاجرہ کو ابراہیم کے نکاح میں دے دیا۔ جب 2424 قبل مسیح میں اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی ابراہیم کی عمر 86 سال تھی۔ اسماعیل سیدہ ہاجرہ کے بیٹے ہیں۔ بی بی سارہ اس وقت تک بے اولاد تھی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو ریگستان میں چھوڑ آئیں۔ ایک روایت کے مطابق بی بی سارہ نے جناب ابراہیم سے ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو کہیں دور چھوڑ کر آنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ابراہیم کے بڑھاپے میں پیدا ہوا، اس بیوی کو جو بہت خیال رکھتی تھی اور نہایت نیک تھی، دونوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ آنا جہاں دور دور تک کوئی نہ ہو، سوچنا بھی آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس مشکل امتحان سے نہ گھبرائے۔ ایک خیمہ، چند کپڑے، کھجوریں اور پانی ساتھ لیا۔ دور ایک غیر آباد صحرا میں جہاں انہیں چھوڑنے کا حکم ملا تھا لے گئے۔ انہوں نے فلسطین سے جنوب کی طرف 1235 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ اللہ کے نبی اور ان کے خاندان نے اونٹ پر 40 دن سفر کیا تو یہاں پہنچے۔ کیا بی بی ہاجرہ کو یہاں سے واپس اپنے گھر جانے کی کوئی امید ہوگی؟ اندازہ کریں اس صبر اور شکر کرنے والی بیوی کے حوصلے کا۔ بی بی ہاجرہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر عمل کیا۔ ویرانے میں اپنے دودھ پیتے بیٹے کے ساتھ چلی آئیں۔ صرف یہ پوچھا، آپ ہمیں کس کے سہارے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم کا جواب تھا، واحد اور مہربان رب کے سہارے۔ بی بی ہاجرہ نے اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے گا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہاں رکنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ کیا یہ فیصلہ ابراہیم نے کیا یا سیدہ ہاجرہ نے؟ کیا سیدہ سارہ نے انہیں اس جگہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا؟ کیا یہ فیصلہ ہمارے رب کا نہیں تھا جس نے یہاں اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا؟ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہترین آسائش، آرام اور تمام نعمتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اچھا گھر، زندگی کی آسانیوں کا سامان، خوشحالی اور بہت کچھ۔ کبھی گمان میں بھی اپنے گھر والوں کو تنہا نہیں دیکھنا چاہتے۔ سبزہ تھا، نہ ہی پانی کا وجود، اگر تھے تو سخت اور خشک پہاڑ، پتھر اور تنہائی۔
वहशत और घबराहट। अल्लाह करीम मोहब्बत करने वालों का खूब इम्तिहान लेता है। कहाँ जा बसने का हुक्म हुआ? ऐसी जमीन पर जहां कोई खेती बाड़ी नहीं। अल्लाह के नबी इब्राहीम ने खैमा लगाया। बीबी हाजिरा और इस्माइल को अल्लाह करीम के हुक्म पर यहाँ छोड़ा और वापस फलस्तीन रवाना हो गए। अब माँ बेटा अल्लाह करीम पर भरोसा करते हुए इस वादी में रहने लगे। कुछ दिन गुजरने के बाद पानी खत्म हो गया। अब यहाँ तन्हाई के अलावा परेशानी भी थी। जिंदा रहना मुश्किल हो गया। इस परेशान कुन सूरत हाल में भी बीबी हाजरा का अपने रब पर यकीन कम न हुआ। प्यास जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बीबी हाजरा ने अपने खेमे के बाहर एक चादर इस सख्त जमीन पर बिछाई, इस्माइल को इस पर लिटाया और खुद पानी की तलाश में निकली। बाहर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह की इस नेक बंदी को यकीन था कि कोई न कोई सूरत जरूर पैदा होगी। वो अपने खेमे की दाएं जानिब वाले पहाड़ सभा पर चढ़ी। इधर उधर देखा, कुछ नजर न आया। न कोई इंसान न परिंदा। नजर भी कैसे आता, यहाँ कोई था ही नहीं। पहाड़ की चोटी से उनका बेटा उन्हें नजर आ रहा था। माँ को तसल्ली थी कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने है। जब कोई सफा पर जाकर कुछ ना मिला तो नीचे उतरी और अपने खेमे की बाएं जानिब वाले पहाड़ मरवा की तरफ जाने का इरादा किया। कोहे सफा से नीचे वादी में आई तो अब बेटा नजर नहीं आ रहा था। माँ को चैन कैसे आता? माँ की मोहब्बत ने मजबूर किया। वो अब चलने की बजाय दौड़ने लगी। जब तक उन्हें बेटा नजर ना आया दौड़ती रही। बेटा नजर आया तो दोबारा चलने लगी। पहाड़ पर चढ़ना उतरना आसान कब है। अब वो कोहे मरवा जो उनके खेमे के बाएं जानिब एक पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़ी। यहां भी कुछ नजर ना आया। दोबारा सोचा कि कोहे सफा पर जाना चाहिए। कोहे मरवा से उतरी। जब वादी में पहुंचने पर इस्माइल नजर ना आए तो फिर दौड़ना शुरू कर दिया। यहां हमें सोचना चाहिए कि एक माँ, भूख और प्यास, अकेली औलाद, वो भी अभी गोद, ना कोई और इंसान, न जिंदगी की उम्मीद। कभी एक पहाड़ पर चढ़ती हैं तो कभी दूसरे पहाड़ पर। जिन लोगों ने पहाड़ी इलाकों में छुट्टियां गुजारने के लिए सफर किया है जानते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना किस कदर मुश्किल काम है। हम अपनी खुशी से जाते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं। यहाँ तो एक माँ अपने बेटे की भूख और प्यास की खातिर परेशानी में पहाड़ों पर चढ़ती और दौड़ती है। इस परेशानी का अंदाजा सिर्फ माँ ही कर सकती है। बीबी हाजरा की बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो दीवानावार दोनों पहाड़ों पर बार बार जा रही हैं। वो सही कर रही हैं कि शायद कोई इंसान नजर आ जाए और पानी का इंतजाम हो जाए। सैयदा हाजरा 7वीं बार सफा पहाड़ से मरवा पर पहुंची तो उन्हें एक अजीब मंजर नजर आया। उन्होंने देखा कि जहां बेटा लेटा हुआ है उसके बिल्कुल करीब पानी है। उनकी खुशी की कोई हद ना रही। कहीं ये नजर का धोखा तो नहीं? क्या वाकई सख्त पत्थर के पहाड़ों में पानी है? मेरे रब, मुझे यकीन था कि तेरी रहमत कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगी। मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र। दौड़ती हुई पहाड़ से उतरी, लेकिन इस बार अपने बेटे की तरफ जा रही थी। इस्माइल के पास पहुंची तो देखती हैं कि जहां इस्माइल रोते हुए एड़ी मार रहे थे वहां उस पथरीली जमीन से पानी का चश्मा निकल आया है। सैयदा हाजरा का अपने रब पर यकीन था कि वो कोई न कोई सूरत पैदा करेगा। ऐसा ही हुआ। अब उन्हें फिक्र हुई कि कहीं ये पानी बहते बहते खत्म न हो जाए। पानी जखीरा करने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने बेइख्तियार कहा, जम जम, ठहर जा ठहर जा। अल्लाह करीम की नेक बंदी का कहना कमाल कर गया। पानी वहीं ठहर गया। चश्मा तो बाकी रहा, लेकिन अब पानी बहना बंद हो गया। सैयदा हाजरा ने उस पानी के गिर्द रोक भी बना दी। अल्लाह करीम की तरफ से जमजम को हमेशा हमेशा के लिए जारी कर दिया गया। आज 4000 साल बाद भी जमजम लोगों को सैराब कर रहा है। रसूलुल्लाह का फरमान है, अल्लाह करीम उम्मे इस्माइल यानी सैयदा हाजरा पर रहम फरमाए। अगर वो जल्दी ना करती
तो जमजम एक बहता हुआ चश्मा होता। सैयदा हाजरा की परेशानी कम हुई, अब उन्हें जिंदगी के आसार नजर आने लगे। चंद दिनों में पानी की वजह से यहाँ सब्जा भी उग आया। वही वादी जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती थी, अल्लाह की कुदरत के सब्जा निकल आया। कुछ अरसे बाद यहाँ से एक काफिला गुजरा जो मुल्क के शाम तिजारत के लिए सफर पर था। उन लोगों का ताल्लुक बनी जुरहम कबीले से था। ये रास्ता उन लोगों का जाना पहचाना था। वो पहले भी बारहा यहाँ से गुजर चुके थे। अब की बार उन्होंने अजीब मंजर देखा। उन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं और खुशी से चहचहा रहे हैं। जब उनके तजस्सुस ने उन्हें मजबूर किया तो वो पहाड़ पर चढ़े। उनकी हैरत की इंतहा न थी। एक खैमा है, सब्जा उगा हुआ है और पानी का चश्मा मौजूद है। ये कैसे हुआ? वो तो बहुत दफा यहाँ से गुजरे थे। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पथरीले पहाड़ों में पानी भी होगा। कोई ऐसे वीराने में तन्हा कैसे रह सकता है? वो लोग सैयदा हाजरा के पास आए और यहाँ रहने की इजाजत मांगी। सैयदा हाजरा ने इस शर्त पर उन्हें इजाजत दी कि जमजम पानी की मिल्कियत सैयदा हाजरा और उनके खानदान के पास रहेगी। वो लोग इस शर्त पर राजी हो गए। सैयदा हाजरा और इस्माइल के बाद ये लोग ही इस शहर के आबाद करने वाले थे। अल्लाह करीम इस शहर को बक्का के नाम से याद करता है। यही शहर बक्का अब मक्का कहलाता है। मक्का की तारीख आदम से शुरू होती है। इल्हामी किताब तौरात में इस जगह को वादिये फारान कहा गया। तूफान नूह के बाद इस शहर में मौजूद कोई चीज बाकी न रही। सैयदा हाजरा और इस्माइल ने इसे आबाद किया। इस्माइल कबीला बनी जुरहम के दरमियान पले बढ़े। इब्राहिम और इस्माइल का दौर सिरियान और यहूदियों से पहले का दौर था। इल्मी एतबार से उनका दौर अल्लाह के नबी याकूब और मूसा के दौर से बहुत मुमताज दौर था। इब्राहिम और इस्माइल की ज़बान अरबी थी। बाज़ तारीखदान ये बयान करते हैं कि जनाब इस्माइल ने अरबी ज़बान कबीले बनी जुरहम से सीखी। ये बात हकीकत नहीं कि बनी जुरहम की ज़बान अरबी थी। एक अरसे तक बनी जुरहम पानी की मिल्कियत बनी इस्माइल के पास रहने के वादे पर कायम रहे। बाद में उन्होंने इस्माइल की औलाद से वादा खिलाफी की और पानी की मिल्कियत उनसे छीन ली। आने वाले दौर में बनी खुजा और बनी इस्माइल ने बनी जुरहम से जंग की और उन्हें मक्का से निकाल दिया। बनी जुरहम जाते हुए जमजम का चश्मा बंद कर गए। सदियों बाद अब्दुल मुत्तलिब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने चश्माए जमजम की खुदाई करवाई तो पानी की मिल्कियत एक बार फिर बनी इस्माइल के पास आ गई। जमजम पानी की जिम्मेदारी आज भी इस्माइल की औलाद के पास है। ज़ाहरी अस्बाब में ये शहर अल्लाह के नबी इस्माइल और सैयदा हाजरा के लिए बसाया गया। हकीकत में ये कायनात बसाई ही अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गई। एक ना बदलने वाली ज़बान अरबी अता की गई। आखिरकार कुरान मजीद अल्लाह करीम की आखिरी इल्हामी किताब को भी तो यही नाजिल होना था। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये कायनात इतनी आसानी से नहीं बसाई गई। जिंदगियां और सदियां गुजरी तो ये आबाद हुई। शहर मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 25,000 साल पहले आबाद हुआ। मक्का सतह समंदर से 277 मीटर बुलंद है। शहर मक्का को इसलिए हरम कहा जाता है क्योंकि ये इज्जत और हुर्मत वाला शहर है। ये शहर जद्दा से 64 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है। तारीखदान याकूत हमवी के मुताबिक शुरू में हरम काबा की इमारत का नाम मक्का था। बाद में पूरे शहर को मक्का कहा जाने लगा। मक्का शहर वादिये इब्राहिम में वाक़ है। इसके शिमाल में कैकान है, जुनूब में जबले हुदैदा है और जुनूब मगरिब में जबले उमर है। मशरिक में जबले हीरा है जबकि शिमाल मशरिक में जबले अबू कुबैस है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर मक्का की वादी में तामीर किया था। तूफान नूह के बाद ये इमारत कायम न रही बल्कि इसका नामो निशान तक मिट गया। यहाँ इस बात का जिक्र भी निहायत ज़रूरी है कि अल्लाह करीम ने माँ में मोहब्बत का जो जज्बा रखा है वो किसी और को हासिल ना हो सका। अल्लाह करीम को एक माँ सैयदा हाजरा का
اپنے رب پر ایمان اور اپنے بیٹے کے لیے کوشش بھاگ دوڑ اتنی پسند آئی کہ اسے حج اور عمرے کا لازمی حصہ بنا دیا۔ یہ پابندی بھی لگا دی کہ جس طرح میری بندی پہاڑوں پر چڑھتی رہی اور نشیبی جگہ پر دوڑتی رہی، ویسے ہی پہاڑوں پر چڑھو اور دوڑو۔ سیدہ ہاجرہ کا اپنے رب پر ایمان اور یقین اسی قابل تھا۔ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جب اللہ کریم کے بندے مکہ میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ رہے ہوں۔ اس عمل کو صحیح کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا۔ اے ہمارے رب، میں نے یہاں تیری حرمت والے گھر کے پاس ایسی وادی جہاں کھیتی باڑی نہیں میں اپنی کچھ اولاد بسا دی ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ہمارے رب، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھل کھانے کو دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ ابراہیم نے کلہاڑا استعمال کرتے ہوئے تمام چھوٹے بتوں کو توڑا۔ کسی بت کا کان کاٹ دیا تو کسی کی ناک، کسی کی آنکھ تو کسی کا سر۔